Hello, good evening everyone. Welcome back to ACEP Online Taekwondo Training Program e-Parsha. I hope you all are ready for today's session. Are you all doing good? All good? Good, very nice. So today you will be having the first part of the session with the coach from Sports Authority of India, ISWA, Mr. Gurjit Singh. So we'll be taking a Taekwondo session for you all as usual. And the second part of the session is little different, a special session on stress management techniques in Taekwondo. And we have a special guest from Delhi, Dr. Tarun Rothan. Sir have completed his PhD from University of Delhi, and sir is a sports administrator, coach, researcher, and sir is presently working as a lecturer at Government of NCT Delhi. The second part of the session will be on the topic stress management techniques in Thailand. So everyone get ready. First part you do the training, second part will be the lecture. So I request the coach to please take over the session. Thank you. Thank you for wonderful introduction. Hello, Sindel. How are you? Welcome once again to Taekwondo e-Patshala. Okay? Okay, first of all, we are going to do some stretching, okay? Get ready. Okay, ready? Start. Head up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Left side down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, now rotation slowly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, now another set. One more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, stand. And up, another set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, left hand up. Delta distance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Tricep stress. Take 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, down. Okay, hands facing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Both hands side up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, hands keep front. Up and down stairs. Ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Sideward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What's your piece? Check.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, reservation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, forearm stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, left hand goes to right side and straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Left hand up, side down. Slowly, slowly down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Come rotation slowly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Open your leg. Knee straight. Alternate toes. Okay, ready? Ready? Slowly. Fast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now faster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, up. Knee bend. Right shoulder down. Pelvic stretch. Down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. One elbow backward. Push back your knee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Now, knee straight. For your left leg ankle down, knee touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change your leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold your both ankle in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Break. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, from here, right side down, side straight. Okay, sit properly, heel down. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On your toe, knee touch down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change your side. Okay, down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On your toe, knee touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. From here, right side down, side leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change your direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, heel up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Down. Pull your leg for the same stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Down. Leg up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, up. Leg close. Knee bending. Heel down. Okay, ready? Slowly down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, left leg, one step forward. Both leg, knee step, okay? Down, knee touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Front leg, toe up.
Again, once more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Leg sense. Again, down, knee touch, knee straight, okay? Don't bend, knee straight, down, knee touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Body close, knee straight. Hold your ankle down, again, knee touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, left leg up. Hip rotation. Slowly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sense your leg. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, left leg up. Use the gluteus stress. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Same leg, quadricep stress. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Front left leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Side work. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sense your leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Front. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, left leg, ankle rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sense your leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, left leg front. Calf stretch. Okay. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sense your leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Jumping jack. Ready? Are you ready? Jumping jack. Okay. Ready? Start. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8. Okay. Are you tired? No, no. Okay. Water break. Back. Okay. Today I will teach you some push-up varieties. Okay. For shoulder, for chest. Okay. Ready? First of all, look at me first. Okay. This is regular push-up. Same straight line.
shoulder, okay? Not too wide, not too close, okay? Same apart of your shoulder, okay? First, look at me. First, look properly, okay? From here, down, okay? Up. Don't touch the ground, okay? Look from sideward. Same like this. Next step, down, up, down, up. Okay, like this, we have to do 10 times. Okay? All of you ready? Get ready? Down, position. Okay, look here first. Those who not do properly, you can bend your leg like this, okay? You can bend like this your leg and you can do like this, okay? For beginners. Otherwise, you have to do your own way, properly, okay? Ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5. Continue, continue. 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Okay. Next. Another variety, okay? Now, this time, right. Your hands should be more wide. Okay? This is for your shoulder and chest. Same style, okay? But this time your hand must be keep wide, okay? Like this. Okay? Look from sideward, okay? Keep your hands open. Leg straight, down. Okay? Ready? Keep your palm wide. Okay? Not too close. Not regular. This is then more wider. Okay? Ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. Come on. 9, 10. Good. Very good. Good. Keep it up. Okay? Next variety is diamond push-up. Okay? Like this, you have to close your hands, keep like this. Okay? Your palms should be keep like this on the floor. Okay? Okay. Hands keep like this. Same. This is for your tricep mostly. Okay? Ready? Down. 1, 2. Okay? From sideward. Check. Look at me first. First look at me. Okay? From sideward. Body was the same. Down. 1, 2. Okay. Are you ready for double push-up? Okay. Good. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, come on. 8. Okay, very good. Okay, now next push-up is Scorpio push-up. Scorpio push-up. Okay? First look at me. Same. Keep your body structure like regular push-up. Okay? From here, what to do? Your back leg. First look at me first, okay, for demonstration. Number 1, look like this. Back leg, one leg lift, okay, like this. 1. Next time, change your leg. 2, 3, 4. Okay? Look from sideward, okay? How to look from sideward, okay? Same push-up stance. Not single leg lift, okay? Like this, one down, one right leg,
Next down, left leg like that. Okay, alternate leg. Okay. Ready? Look first. 1, 2. Okay. Okay. Leg sense, one left, one right. You have to sense like alternate. Okay. Only 8 times you have to do. Only 8 times you have to do. Okay. Ready? Ready? Position. Ready? 1, 2, 3, 4. Okay. 5, 6. Come on, come on, come on. 7. Up, up, up. 8. Very good. Okay, keep it up. Okay. This is for shoulder and your chest. Okay. Now next is for abdomen, pack. Okay, 6 pack. First, sit up. All of you know sit up. How to do sit up? Lay down. First, look at me for this demonstration. Okay. First, look at me first. Down. Up. Like this. 1, 2, 3. Okay. From sideward, look at me. Like this. Okay. From here down. Hands should keep here. Okay. Front. 1, 2, 3. Okay. Now all of you know how to do sit-up. Okay. Now 10 times. Okay. 10 times. Ready? Lay down. Hands keep front. Ready? Down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Now next exercise is okay from sideward. Okay. From here you have to stand. You have to up and swing your body. Okay. Okay. From front side you have to look first. Look at me first. Ready? From here, hands on your head. Okay. Lift up and swing. Okay. Left elbow to right knee. Right elbow to left knee. Opposite side. Okay. Look at me first. 1. Now change. 2, 3. Like this. Okay. From sideward. Look at me. Look at me first. Okay. Ready? 1, 2, 3, 4. Okay. Don't you know? Okay. Ready? Now 10 times. Okay. Ready? Lay down. Hands on your back. Okay. Down. Ready? Up. 1. Down. 2. Down. 3. Down. 4. Down. 5. Down. 6. Down. 7. Down. 8. Down. 9. Down. 10. Okay. Santosh, you're doing good. Okay. Okay, next, one variety more. Okay, there are lots of variety for this abdomen. Okay, but we have to only some selected due to this lack of timing. Okay. Okay, once more. Look from sideward. Okay. From here. Your hand must be straight like this. Okay, and your leg also same without knee folding. Same straight you have to lift. Okay. And hand also. You have to lift together and touch both sides. Try, okay? Ready like this. Look at me first. 1, 2, 3, okay? Okay, look from front view. Lay down.
Look at me first, okay? Ready? 1, together. 2, 3. Okay? Now we have to do only 8 times, okay? Ready? From sideward. Look, 8 times. 8 times. Ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, are you tired? Okay, water break. Okay, welcome back. Now this time knee high action, okay? Knee high, single leg, double and alternate varieties, okay? Ready? This is normal knee high, okay? Ready? Look at me first, slowly. 1, down, 2, down, 3, okay? From sideward. From here, look, straight line. Then lift. 1, down, 2, down, 3, down, okay? Now we have to do 20 count, okay? 2, 0, 20. But faster, little fast, okay? Ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Okay, now single leg knee high. How to do? Okay, first look at me first. Left leg front. Okay, from here. Okay, not this side. Your shoulder and front side. Okay, like this. And swing. Okay, 2, 3. And look from right leg. Look for right leg. Okay, ready? Start. 1, 2, 3. Okay, but this supporting leg must be rhythmic. Okay, like this. 1, 2, 3. Change your leg with 6. 1, 2, 3. Okay? Ready? Now left leg front 10 times. Okay? Ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Now change right leg. Okay? Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, now same single leg, double and change. Okay? Look at me first, slowly. 1, 2, 1, 2. Okay? 2, change and same 2. Okay? Ready? 20 times. Okay, means 20 means count is 40, but we have to count double leg means 1 count, okay? If you change the leg, there is number 2 count. If you change the left leg, again 3 count, okay? Ready? 20 times, ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 20. Okay, all of you understand how to do? Good. Okay, from here, look, stay like this, hands keep back, okay, from here, back like this, back to sport, distance, okay, for quadricep, from front like this, hands keep back and kick your butt, okay, for relax, for muscle, okay, ready, okay, 10 times, ready, start, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay, relax. Okay, now open your leg. Your feet must be 75 degrees, okay? And body must be straight. Now we have to down, okay? For this, hamstring, do this muscle and this pelvic, okay? Down, body straight, okay? Look at me first, slowly. 1, 2, 3, okay? Look from sideward. From here, not like this, okay? Body straight, like this. 1, 2, 3, okay? Now we have to do 10 count, okay? Position. Ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Very good. Now next is frog jump. Okay. Look at me first. Sit properly, okay? Heel up. From here. On spot you can jump or you can roll here also with jumping, okay? This is called frog jump. This is for your calf muscle and for thigh, okay? Maybe this. Quadricep. Okay, ready? Look at me first. Like this, okay? On spot or you can jump also, sideward also, okay? Okay, like this. Different type. From look here from sideways. Sit properly. Heel up, okay? Heel up. From here, okay? You can go front, you can go back, you can sideward, you can sideward. Okay? Okay, we have to do front on spot 10, front 5, back 5, left side 5, right side 5. Okay? Ready? Sit. On spot 10 times. Ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Now we have to go front 5. Okay? But not long, short stance. Okay? Short jump. Ready? Frontward. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Now back 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Now left side 5 times. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now right side 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, up. Okay, leg kicking leg, relax. Relax your leg. That is called frog jump. Okay, now next task is duck walk. Duck walk, okay? Look fast, look at me. This also, you can lift up your heel, okay? But knee must be close, okay? Don't open like this, okay? Close. Hands keep up. And you have to walk forward, okay? Same like you can go this front walk, back, right side, left side. It's up to you, okay? But not long stance. This is short stance, okay? Now look at me first like this.
This is front. This is back. No, this is right. This is left. Okay, now we have to do front 5, back 5, right side 5, left side 5. Okay, ready? Okay, now front 5. Okay, ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5. Now back 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now right side. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now left side. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, up. Okay, kick, relax. Okay, water break. Okay. Ready? Fast, slowly, slowly. Front back, front back. Front back. Now, sideward. Okay, now, this time, tuck jump, okay? Tuck jump. Look at me first, how to do. From here, you have to jump, okay? Maximum as high. And your this thigh, try to touch your chest. Okay, first look at me first. From here. 1, okay. From sideward, look at me. From here, jump. 1, okay. Or if you know how to do, okay, now 8 times, okay? Tuck jump. Ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, good. Okay, next is jump and toe touch. But your knee must be straight. Okay, first look at me. From here, same both leg. You have to jump and touch your toe. Okay, first look at me like this. 1, 2. Okay, from sideward. From side, look at me. Okay, like this. 1, 2. Okay, knee straight. Okay, don't bend your knee. Knee straight, jump and touch like this. Okay, ready? This also 8 times. Okay. Ready? Toe touch. Okay, ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, very good. Okay, now this time back double touch. Okay, jump and you have to touch your buttock. Okay, on both leg side, left side, then one next time right side. Okay, look at me first. Demonstrate. From back side you have to look. Okay, back side I have to do from back side. Left side and right side. Okay, look at me first like this. 1, 2, 3. Okay, you have to lift your leg, jump both leg, and leg also together. Okay, from front view. Okay, look at me like this. 1, 2, 3. Okay, now same 8 times. Are you ready? Okay, good. Ready? Left side first. Okay, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, good. Keep it up. Okay. Next is, okay, from here, look at me first. Open your leg and you have to, from here, change. Okay, same. Change.
Look from side view. Open your leg. Body straight, okay? Don't go down like this. Body straight and change. Okay? On air, change your leg also. Okay, on air. Ready? This also 8 time. Open your leg. Ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Okay, good. Now, only for today, this much, okay? Cheryl, you're ready. Thank you. Thank you, sir, for a nice session. Dear trainees, all tired? Who all are tired? Hands up. I'm tired, I'm sweating. I was doing the training. Okay, some of them are tired. Good. So relax. Have some water. Sit near the camera and keep doing some cooling down exercises or stretching. As I already announced that we have a special session today, the part 2 will be with Dr. Tarun Rothal from Delhi. Sir is a lecturer at Government of NCT Delhi. Sir is here with the topic on, sir will be taking the topic on stress management techniques in time. It's a very good topic. Everybody be ready and have a nice session, enjoy the session. I request Dr. Tarun Rothal to please take over the session. And I also welcome him to our program. Thank you, sir. Okay. Hello, am I audible? We welcome you. Hello. Yes, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. And hello to everyone here, present here. And after a strainful training, I would like to introduce myself first. I am Dr. Tarun Rothal. I am lecturer in Delhi government, and I have completed my PhD in Taekwondo in 2015. Today, I will talk about stress management techniques in Taekwondo. But before that, I would like to give a warm greetings to the Sports Authority of India and the Director, Athlete Coaching and Education Program, Taekwondo Committee, and our own Sanjay Saraswat sir for giving me a platform to share my experience and opinion as well as my study on this topic. Now I will take you a bit of time to discuss what exactly stress is. Can I share my screen? I mean, I request Sai North Bangalore to allow me to share my screen. Sir, you can go ahead. You are the co-host now. Okay. Am I visible now? Yes, sir. Yeah. First, I would like to talk about stress. What exactly a stress is? Stress is a personal experience caused by presence or demand on an individual and its impact upon the individual's ability to cope. Means stress is not a single level activity or thing. It is a multi-level thing. It may damage ourselves in physical way, mental way, social way, biochemical way. It is clear that all of us are exposed to some kind of stressful situation at the societal level, community level, or interpersonal level. But being a sportsman, we have seen
we are exposed to stressful situation during competition as well as during training times. An athlete experiences two types of stress, that is eustress and distress. A eustress is a positive stress which enables us to wake up for it is kind of alarm which wake up for preparing ourselves. Like हमारा competition है 5 दिन बाद, तो there we will experience some kind of stress जो हमको बोलेगी 5 दिन बाद competition, we have to prepare positively. So this stress comes under eustress जो हमारे को positively prepare करती है. बट हम जो स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे वो है डिस्ट्रेस, जो हमको नेगेटिवली इफेक्ट करती है, जिसका इम्पैक्ट नेगेटिव है हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर. व्हाट इज स्ट्रेस इन ताइक्वांडो? एज वी ऑल नो कि जो ताइक्वांडो कंपटीशन है वो हर लेवल पे बढ़ता ही जा रहा है. हमने लास्ट टाइम एशियन गेम्स में मेडल 2002 में जीता था, बट कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है कि हम क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू विन अ मेडल. इट मे बी अ रीजन कि हमारे जो एथलीट हैं वो स्ट्रेसफुल होते हुए जो क्वार्टर फाइनल्स बाउट खेलते हैं वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में खेलते हैं, जिसपे अब तक वर्कआउट नहीं किया गया कि उस कंपटीशन टाइम पे हम स्ट्रेस को कैसे रिलीज कर सकते हैं. फॉर एन ताइक्वांडो एथलीट, अ स्ट्रेस में बी डिफाइंड as a negative physiological state or a psychological response occurring to situation where we perceive threats to our performance. वो stress हमारे को हो क्यों रहा है? क्योंकि due to we are bound to perform well in a competition. हर स्पोर्ट्स की तरह हमारे ताइक्वांडो एथलीट्स को भी दो टाइम पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करनी पड़ती है. कॉम्पिटिशन्स के टाइम पे, कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर करने के टाइम पे, मींस ड्यूरिंग ट्रेनिंग. देयर आर सो मेनी कॉजेज ऑफ स्ट्रेस. वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी. सबसे पहला कंपटीशन. कंपटीशन में एक ताइक्वांडो एथलीट किन सिचुएशन में स्ट्रेस फील करता है? सबसे पहला इंजरी. इट मे बी अ पास्ट इंजरी और इट मे बी अ ड्यूरिंग कंपटीशन इंजरी, कि हम फाइट खेलते हुए इंजर्ड हो गए, मे बी माइनर इंजरी हो, हल्का सा ट्विस्ट कर जाए, मोच आ जाए, थोड़ा पेन, मसल स्पाज्म आ जाए फर्स्ट बाउट में, तो सेकंड बाउट में हमको ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ले आता है कि हम अपनी सेकंड बाउट कितना परसेंट या कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं. सेकंड है बिग कॉम्पिटिशन्स का परफॉर्मेंस देना, लाइक एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप. हमारे लिए मतलब डेड सिचुएशंस होती है वो कॉम्पिटिशन्स हर बाउट में, कि हमको हर बाउट में एक अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है. थर्ड इज अपोजिशन. सबसे पहले हम लोग टाई शीट्स ही देखते हैं कि हम किसके पूल में आए हैं, मेडल तक पूल इजी है नहीं है, तो ये टाई शीट्स देखना भी हमको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में ले आता है. फोर्थ इज ऑडियंस एंड ऑफिशियल्स. ये ऑडियंस एंड ऑफिशियल्स जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो भी बहुत बड़ा एक पोटेंशियल कॉज है हमारे को स्ट्रेस में लाने का, क्योंकि कई बार हमने भी फील किया कि देयर आर सर्टेन कंट्रीज एट इंटरनेशनल कंपटीशन या नेशनल कंपटीशन होते हैं, सर्टेन स्टेट रेफरीज जो हमको लगता है कि दे विल फेवर द अदर अपोनेंट. इट मे बी ड्यू टू सम और अदर रीजन. सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल पोटेंशियल कॉजेस. लाइक हम सब ताइक्वांडो से जुड़े हुए हैं तो हमने फेडरेशन का देखा ही है कि वी आर मैक्सिमम ऑफ आवर पोटेंशियल कॉजेज आर फ्रॉम फेडरेशन साइड. इट मे बी ड्यू टू हमारे सिलेक्शन टाइम पे नहीं हो रहे हैं, हमारे ट्रेनिंग इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, हमारे कैंप्स टाइम पे नहीं लग रहे हैं, या हमको कैंप का टाइम बहुत कम डेज का मिल रहा है, या कैंप जिस एरिया में लग रहा है दीज कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर सर्टेन स्टूडेंट्स, या सर्टेन स्टूडेंट्स बिलोंग टू सर्टेन स्टेट्स. ठीक है. देयर मे बी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स विद कोचेस एंड टीममेट्स. देयर मे बी परसीव्ड लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन. लाइक हम कैंप में पहुंच गए हैं बट वी आर नॉट एबल टू गेट मैक्सिमम रिसोर्सेज या मैक्सिमम फैसिलिटीज, की मैट्स प्रॉपर नहीं है, मैट्स आउटडेटेड है, चेस्ट गार्ड जो हम आजकल सबसे ज्यादा सिचुएशन फेस करते हैं. दीज आर द अपडेटेड इक्विपमेंट्स लाइक पीएस सेंसर्स हमको अपडेटेड नहीं मिल रहे. एंड थर्ड सिचुएशन ट्रैवल एंड अकोमोडेशन इश्यूज. लास्ट पर्सनल इश्यूज जो हमको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में लाते हैं, लाइक लाइफस्टाइल.
कि हमारी लाइफस्टाइल क्या है कि हमने थोड़े दिन ट्रेनिंग करी बट वी आर वेरी मच एक्टिव इन सोशल एक्टिविटीज लाइक दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, ये भी हमको कंपटीशन या ट्रेनिंग टाइम पे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में लेके आते हैं। अवर फाइनेंशियल इश्यूज लाइक एक अच्छा एथलीट को एक गेम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं कि एक मेडल आएगा, तो उनको कोई जॉब ऑफर होगी, उनके फाइनेंशियल इश्यूज को ओवरकम किया जाएगा। बट अगर वो मीट नहीं करी, लाइक इन कोविड सिचुएशन हमने बहुत 5-6 महीने से ट्रेनिंग नहीं करी और ना जो कोचेस थे वो भी ट्रेनिंग नहीं करवा पाए अच्छे से। जो एथलीट है, जो दिस इज दी ओलंपिक ईयर की कितने एथलीट्स ने प्रिपरेशन करी थी कि वो इस साल क्वालिफाई करके ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे और मेडल जीतेंगे, एंड दे विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ फाइनेंस सपोर्ट फ्रॉम दी कंसर्न्ड अथॉरिटीज। बट वो सब इश्यूज उनको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लाने की गेम ही पोस्टपोन हो गए ड्यू टू कोविड सिचुएशन। दे मे बी ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स लाइक कोई रिलेटिव, कोई बहुत नोन बहुत हमारा वेल नोन पर्सन हैज एक्सपायर्ड और मेट विद एन एक्सीडेंट, और हमारे एकेडमिक इम्बैलेंस बीइंग स्टूडेंट और बीइंग कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट, हमारे को एकेडमिक इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है फॉर जो हमको ट्रेनिंग पे भी ध्यान नहीं देने देता इतने अच्छे से। Why stress management is required in our game? Stress management एक इंटीग्रल और एक एसेंशियल पार्ट है इस वक्त एक एथलीट, हमारी गेम में नहीं सभी गेम में, फॉर एन एथलीट प्रिपरेशन फॉर एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। विदाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट वी कांट परफॉर्म वेल इन ईच एंड एवरी competition. Stress management in sports simply means that one have to cope, control and reduce the occurrence of negative conflicts of stress. क्योंकि जब भी हम कंपटीशन में जानते हैं, we are bound with so many negative emotions and negative conflicts comes in our brain कि आज मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इन सबको बाउंड करने के लिए, इन सबको रिड्यूस करने के लिए we need stress management, proper stress management. It is clear that stress is a part and parcel of all sports competitions. Therefore, different approaches should be sought in coping with this effect. क्योंकि हमें ये situations को cope करने के लिए बहुत अच्छी strategies use करनी पड़ेंगी. And these strategies are very subjective. ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई technique use कर रहा हूँ अपने आप की stress को relieve करने के लिए, and the same technique is applicable for the other athlete. क्योंकि हर एथलीट देयर इज एन इंडिविजुअल डिफरेंस। मेरा स्ट्रेस किसी और रीजन की वजह से हो सकता है, किसी और का स्ट्रेस किसी और रीजन की वजह से हो सकता है, तो हमें वो इंडिविजुअल डिफरेंस को भी देखना पड़ता है स्ट्रेस मैनेजमेंट में कि सो दैट हम एक अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट जो इंडिविजुअल का स्ट्रेस है उसको पॉजिटिवली कोप अप कर सके। इट मस्ट बी रियलाइज्ड दैट कोपिंग विद द स्ट्रेस ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन इज मोर फॉर कॉग्निटिव फंक्शंस। कि स्ट्रेस हमारी फिजिकल रिलीफ के लिए नहीं है, दिस इज फॉर कॉग्निटिव फंक्शंस। कॉग्निटिव मींस कि हमारा ब्रेन पॉजिटिवली वर्क कर सके, अवर थिंकिंग एबिलिटीज, कि हम बाउट खेल रहे हैं, जब हम स्टेट लेवल पे खेलते हैं तो हमारे पे कॉग्निटिव फंक्शंस हमारे प्रॉपर्ली वर्क करते हैं, बट जब हम नेशनल या इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम इजी काउंटर अटैक्स भी नहीं कर पा रहे हैं, या जब हम अटैक कर रहे हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी ही हमको इनहिबिट कर रही है किसी भी काउंटर को, मतलब किसी भी अटैक को फेस करने के लिए। इट इज ऑल ड्यू टू द इम्बैलेंस इन अवर कॉग्निटिव फंक्शंस। इट मस्ट बी रियलाइज्ड, इट मस्ट बी देयरफॉर द नीड, इन सब कारणों की वजह से हमें एक बहुत अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट कोपिंग स्ट्रेटेजीज को अपने लाइफस्टाइल में लाना ही चाहिए। एंड इवन कोचेस आपको भी इन टेक्निक्स के बारे में प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए और इनको अपने स्टूडेंट्स में अप्लाई करना चाहिए। अब मैं थोड़ी बहुत जो मेजरली यूज्ड कॉमन टेक्निक्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला है पॉजिटिव थिंकिंग। वी हैव टू टेल अवर स्टूडेंट्स कि आपको हमेशा while in training and while in competition positive thoughts ही लाने हैं for our expectations, for our achievements, for our on the state type of competition कि मेरा इस बंदे इस पर्सन से अपोनेंट से बाउट है, तो हमें पॉजिटिव थॉट्स ही लाने हैं कि हमें नेगेटिव नहीं सोचना कि वी आर इंजर्ड, अरे ये तो लास्ट ईयर का चैंपियन है तो वी कैन, मतलब हाउ आई कैन बीट हिम।
हमें पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं, हमें उसके वीकनेसेस के बारे में सोचना है और अपनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स के बारे में सोचना है। जब हम ये टेक्निक्स यूज करते हैं तो वी गेट अ पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव ऑरा अराउंड अस। सेकंड इज इमेजिनरी प्रैक्टिस। वी कैन वेरी मच यूज दीज टेक्निक्स इन अवर ट्रेनिंग सेशंस। बहुत सारी फेडरेशंस या गेम्स दीज टेक्निक्स आर प्रैक्टिसिंग इमेजिनरी टेक्निक्स। इमेजिनरी टेक्निक्स में करते क्या है कि जब भी मेरे को कोई स्किल लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एकदम रिलैक्स होके अपने आईज क्लोज करके अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करके एक बार आईज क्लोज करके अपनी जितनी भी टेक्निक्स, जो भी टेक्निक मेरे को सीखनी है उसके बारे में एक स्लो मोशन में सोचूंगा कि मैंने अपनी किक स्लोली उठाई, मैंने किक ऐसे हिट करी, वापस लेके आया। सबसे पहले बहुत स्लोली हर एक इवेंट या एग्जीक्यूशन को ध्यान से सोचना, फिर सोचना कि मैं मिस्टेक कहां कर रहा हूं, अपनी मेंटली एक इमेजिन करना कि आई एम परफॉर्मिंग दिस टेक्निक एंड मेरे से ये मिस्टेक हो रही है, फिर मेंटली उस मिस्टेक को एलिमिनेट करना। ये मेंटल इमेजिनरी ट्रेनिंग का एक पार्ट है। और अगर जब हम इसको करते हैं तो वी रिसर्चेस हैव फाउंड दैट दिस टेक्निक हैज वेरी मच दिस टेक्निक हैज अ वेरी मच इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। कि जो एलिमिनेशन से जो मस्कुलर टेंशन है, जो हमारी स्किल्स में एरर आ रहे हैं, वो बहुत जल्दी और रिलेटिवली सिग्निफिकेंटली एलिमिनेट होते हैं। थर्ड टेक्निक इज डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय एंगेज इन पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स। कि हमें अपने स्टूडेंट को ही सिखाना है कि अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलना है कि आई कैन बीट दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन परफॉर्म दिस, मैं ये टेक्निक अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं ये टेक्निक इतने टाइम पे इतने अच्छा एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अपनी रिकॉर्डिंग्स बनाना कोई भी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए। तो ये जब हम ये एक्टिविटीज करते हैं तो हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जो हमारे एरर्स को मिनिमाइज करते हैं। नेक्स्ट इज एलिमिनेटिंग इनहिबिटरी मैसेज एंड स्टेटमेंट्स। जब भी हम किसी ट्रेनिंग या हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे बहुत सारे थॉट्स आते हैं जो हमारे इनहिबिट करते हैं, हमको रोकते हैं कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। कि आज तो मेरे को भैया के साथ परफॉर्म करना है, आज हमें लेग ट्रेनिंग करनी है, मेरे तो पैर में पेन हो रहा है। तो हमें ये थॉट्स को एलिमिनेट करना है, मिनिमाइज करना है। हमें उन चीजों के बारे में नहीं सोचना जो हमको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, हमको रोक रही है कोई भी एक्टिविटी करने से। रेदर देन हमें उन एक्टिविटीज के बारे में सोचना है जो हम अच्छे से परफॉर्म करते हैं और हम उसको अपनी ट्रेनिंग में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कि मेरी पुश किक बहुत अच्छी है लेकिन आज हमको दोलियोचिकी करा रहे हैं, तो मैं पुश किक जो मैं बहुत बेस्ट करता हूं उसको मैं दोलियोचिकी में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, जिसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। तो हम जितनी भी इनहिबिटरी हमारे मैसेज है उनको एलिमिनेट करना, उनको मिनिमाइज करना और जितनी भी पॉजिटिव ट्रांसफर है वो करना। ये हमको एक सिखाना पड़ेगा अपने स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट इज मेडिटेशन। It may be done before training or after training. These meditation techniques are useful in both phases. अगर हम पहले करते हैं तो we are activating our channels, our energies for maximum workout. और जब हम इसको ट्रेनिंग के बाद करते हैं मेडिटेशन, तो हम अपनी जितनी भी एनर्जी जो हमारा फॉलो जिसके अंदर डिस्ट्रैक्ट या डिस्पर्स हो रखी है जो हमारी एनर्जी, उसको वापस कोर स्ट्रेंथ की तरफ लाना, कोर की तरफ लाना और उसको चैनलाइज करना। मेडिटेशन हमारी ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करता है और हमारे फोकस को भी चैनलाइज करता है। नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में देयर आर सो मेनी टेक्निक्स व्हिच विल डिस्कस इन लेटर स्लाइड। रिलैक्सेटरी टेक्निक्स में प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन हम नहीं करते कभी भी परफॉर्म। जो मतलब मैं पर्सनली फील करता हूँ कि हमारे को ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग कंपटीशन दोनों टाइम पे चाहिए। हमारी मसल इतनी बार कंट्रैक्ट करते, रिलैक्स करते, इतना अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जिसको एलिमिनेट करना या उसको वॉश आउट करना बहुत जरूरी है। बट हम ट्रेनिंग करते ही हम रिलैक्सेटिव हमारे जो मेथड है वो है हम एक जगह बैठ जाते हैं, हम कोई एक्टिविटी नहीं करते। नहीं, ऐसे रिलैक्सेशन नहीं होता। रिलैक्सेशन करने के लिए हमारे आपको मसल्स को स्ट्रांगली कंट्रैक्ट करना है और बड़ा स्लोली रिलैक्स करना है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी, आफ्टर ट्रेनिंग भी। नेक्स्ट इज काइनेस्थेटिक अवेयरनेस।
काइनेस्थेटिक अवेयरनेस मींस हमारे को अपनी बॉडी पोजीशन का बहुत अच्छे से पता हो। हम कई टेक्निक से हम हमेशा देखते हैं 360 720 टेक्निक्स जो किक्स मारने हम सब सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, बट हार्डली हम उसको इम्प्रूव कर पाते। क्यों? क्योंकि हम उस ट्रेनिंग को देख के कर रहे हैं, बट हम अपनी काइनेस्थेटिक अवेयरनेस को ध्यान में रख के नहीं करे। काइनेस्थेटिक अवेयरनेस का मतलब ये है कि मैं अपनी बॉडी के बारे में प्रॉपरली अवेयर हूं कि मेरी बॉडी की पोजीशंस क्या है, मेरी बॉडी की लेंथ, मेरी बॉडी की साइज कितना है, कि मैं कितना डिस्टेंस पे रख के अगर किक करूं तो मेरे को कैसे स्कोर मिलेगा। सिचुएशंस आती है, हम बहुत क्लोज आ जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, तो इस सिचुएशन में काइनेस्थेटिक अवेयरनेस बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लास्ट एक कीवर्ड्स, हम हार्डली कीवर्ड्स यूज करते हैं किसी भी टूर्नामेंट में या ट्रेनिंग में। कीवर्ड्स मींस हम ऐसा वर्ड बोले जो हमारे एथलीट को बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे, लाइक वेरी गुड, एक्सीलेंट। हम बहुत कम चांसेस है, हम हमेशा, मैंने जो ऑब्जर्व किया था, मैं हमेशा कोचेस वो करते हैं बैक किक मार, पुश किक मार, नहीं, हम बोले बैक किक पुश, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी किक मारी। हम कीवर्ड्स यूज करें, इनफैक्ट हम कीवर्ड्स बनाएं कॉम्पिटिशंस के लिए, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिशंस में बोलते हैं नेशनल पे, स्टेट में, कि हम कोई भी कीवर्ड्स होते हैं तो हमें पता है कि सामने वाला भी वो सुन रहा है, तो हम कीवर्ड्स ही ऐसे डिजाइन करें कि जो हमारा कीवर्ड है उस अपोनेंट को भी थोड़ा डाइवर्ट करे और या उसको थोड़ा कंफ्यूजन में लेके आए। नेक्स्ट हम मेडिटेशन टेक्निक को थोड़ा ब्रीफ में बढ़ते हैं कि मेडिटेशन कैसे काम करता है। जो रिकमेंडेड है, रिसर्च कहती है हमें मेडिटेशन अपनी ट्रेनिंग में कम से कम 3 days अ वीक करनी चाहिए एंड 20 मिनट्स का सेशन जरूर लेना चाहिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ड्यूरिंग कंपटीशन हमें बिफोर मैचेस एटलीस्ट 5 मिनट्स अपने आप को देना चाहिए मेडिटेशन के लिए, इरिस्पेक्टिव हमको कोई कोच आके बोले कि आप थोड़ा रिलैक्स कर लो, आप मेडिटेट कर लो। मेडिटेशन हमको चैनलाइज करता है, हमारी एनर्जी को, हमारे को फोकस्ड रखता है, हमारे को एनर्जी को एकदम फ्लो में लेके आता है। मेडिटेशन करने का तरीका क्या है? जस्ट यू गो स्ट्रेट, वेदर ऑन बोथ द फीट्स, हम नी फोल्ड करके बैठे या हम नी स्ट्रेट करके बैठे, वी हैव टू फोकस, वी हैव टू क्लोज अवर आईज एंड अपने आप पे फोकस करना है। अगर कोशिश कर सकते हैं तो हम अपनी आईज बंद करके अपने सेंटर पॉइंट पे, आईज के एकदम सेंटर, नोज के टॉप पे, वहां फोकस कर सकते हैं और हम कोई उच्चारण कर सकते हैं ओम का, लाइक ओ, ऐसे 5 मिनट्स के लिए हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं। हम पॉजिटिव थॉट्स ला सकते हैं कि आई एम एट पीस, आई लव माई सेल्फ, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं वाइल मेडिटेटिंग। तो ये एक हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है विच कैन बी यूटिलाइज्ड व्हाइल परफॉर्मिंग इन अवर कंपटीशन और अवर ट्रेनिंग। नेक्स्ट मेथड इज डीप ब्रीथिंग, जो हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में यूज कर सकते हैं। इवन ड्यूरिंग कंपटीशन हमें 1 मिनट का ब्रेक मिलता है, अगर हम उस 1 मिनट में हम कोई 5, 10 या 15 सेकेंड्स हम यूज कर सके डीप ब्रीथिंग के लिए भी, तो इट कंसंट्रेट्स अवर बॉडी, जो हमारी एनर्जी डिस्पर्स हो रखी है हमारे हेड टो हर जगह, उसको हम एकदम कोर की तरफ ला सकते हैं। डीप ब्रीथिंग में जो एक ध्यान देने की बात होती है, हमें ब्रीथिंग के बारे में ये चीज नहीं पता होता कि हमें इनहेल कितना करना है, एक्सहेल कितना करना होता है। द रिकमेंडेड परसेंटेज इज, अगर हम 10 सेकेंड के लिए ब्रीथिंग कर रहे हैं तो 60-40 रेशो होना चाहिए। 60% हमें एक्सहेल करना होता है, 40% हमें इनहेल करना होता है, क्योंकि जो हमारे अंदर स्ट्रेनस वर्क की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो रखा है और हमें रिलैक्स करना है, तो हमें 76 सेकेंड्स, अगर 10 सेकेंड्स की एक्टिविटी है, आ, 10 सेकेंड्स की एक्टिविटी है तो हमें 6 सेकेंड एक्सहेल करना है एंड 4 सेकेंड्स इनहेल करना है। नेक्स्ट मेथड इज बी प्रेजेंट, हमें हमेशा रेडी रहना है हर सिचुएशन में, अपने आप को समय देना है सेल्फ के लिए। ये नहीं कि हमारी बाउट हो गई, हमारी ट्रेनिंग हो गई, हमने जल्दी से फोन उठाया और हम साइड में निकल गए, हम किसी दोस्त के साथ बात करने के लिए नहीं। ऑलवेज गिव टाइम टू योर सेल्फ। जब तक आप अपने दिन में 5 to 10 मिनट्स अपने लिए नहीं निकालते, जिसमें सिर्फ आप अपने बारे में सोचें, अपनी अवेयरनेस के बारे में सोचें,
अपने आप को फील करें, अपनी ब्रीथिंग को, अपनी हार्ट रेट को फील करें। स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. तो वी वर एट बी प्रेजेंट, हम अपने आप को फील करें, अपनी ब्रीथिंग को फील करें। जब हम एक जगह कंसंट्रेट करते हैं तो हमें अपनी हार्ट रेट भी सुनाई देती है। ये कई बार तब भी होता है जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, रात को बेड पे पिलो लेके लेटते हैं, तो आप देखते हैं कि हमारी ब्रेन से आवाज आ रही है धक धक लब डब लब डब। ये इतनी ज्यादा स्ट्रेनस हो जाता है क्योंकि हमारा वर्कआउट, हमारा डेली स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमें सब चीजें एलिमिनेट करनी होती है और हमें अपने आप को ही फील करना होता है। नेक्स्ट मेथड इज ट्यून इनटू योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, सी योर बॉडी, एक्सेप्ट योरसेल्फ। हमें ऐसे थॉट्स कभी नहीं लाने कि वी आर लैकिंग इन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। एज एन इंडिविजुअल मेरे अंदर कुछ कमियां हो सकती है जो मेरे को स्ट्रेस में ला सकती है। मे बी मैं बैक किक अच्छी नहीं मारता, मे बी मेरा लेफ्ट लेग इतना डोमिनेटिंग नहीं है। नहीं, मेरे को ऐसे थॉट्स को नहीं रखना, मेरे को अपने आप को एक्सेप्ट करना है हर सिचुएशन में। मेरे को अपनी बॉडी को रेडी रखना है। मेरे को हर टाइम ये अपने पॉजिटिव के बारे में सोचना है। अगर मेरा लेफ्ट लेग डोमिनेटिंग नहीं है तो मेरा राइट लेग तो डोमिनेटिंग है, मैं उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता हूं, मेरे को ऐसे थॉट्स लाने हैं। द डे वी वर एबल टू ट्यून इनटू अवरसेल्फ, हमारी परफॉर्मेंस में ड्रेस्टिक चेंज आएगा। नेक्स्ट इज डीकंप्रेस योरसेल्फ। जब मैं ट्रेनिंग करता था या जब मैंने जितनी एकेडमीज विजिट करी है कि हमने ये ट्रेनिंग डीकंप्रेसिंग वर्ड या हमने मेथड यूज ही नहीं किया। हमेशा हम जब भी ट्रेनिंग फिनिश करते हैं या हम कोई बाउट फिनिश करते हैं, तो हमारी बॉडी में एक अच्छे अमाउंट में, जैसे कहते हैं ना, हाई अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाता है। जब तक हम उसको डीकंप्रेस नहीं करेंगे, हमें उसको क्लीन नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो मसल्स है वो हमेशा रिस्ट्रिक्ट करेगी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। हमें डीकंप्रेस कैसे करते हैं? अगर हम इंजर्ड है तो हम कोल्ड वाटर यूज करते हैं। अगर हमें एक्साइटेटरी स्टेट में आने में रेडी होने तो हम वार्म वाटर यूज करते हैं। हम रैपिंग कर सकते हैं, हम गर्म पानी से नहा सकते हैं, हम सोना बाथ ले सकते हैं। बट जो ये मेथड्स हैं वो बहुत स्लोली होने चाहिए एंड टॉप टू बॉटम, नेक टू शोल्डर, हमारी हर छोटी मसल्स पे कंप्रेशन होना चाहिए, क्योंकि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन वो हर छोटे बड़े मसल पे जरूर इंपैक्ट करती है। नेक्स्ट मेथड इज एंजाइटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग। हम अपनी एंजाइटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? वी हैव टू टीच दिस मेथड टू अवर एथलीट्स एंड इवन अवर कोचेस कि हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं। एंजाइटी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेनिंग एज वेल एज कॉम्पिटिशन। देयर आर सो मेनी मेथड्स जो हमने अभी डिस्कस भी किए हैं, जैसे विजुअलाइजेशन, कि हम अपनी बॉडी के बारे में विजुअलाइज करें। हमने ट्रेनिंग करी, हमने एरर्स के बारे में सोचे, हम एरर्स को विजुअलाइज करते हुए उनको एलिमिनेट करें। दिस सेकंड मेथड इज मसल प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन। ये बहुत ही एक डोमिनेंट मेथड है जो बहुत वाइडली यूज्ड होता है आजकल ट्रेनिंग में, आफ्टर ट्रेनिंग। इसमें हम एथलीट को बोलते हैं कि आप ले डाउन, रिलैक्स करो, पहले उसकी ब्रीथिंग को कंट्रोल करवाते हैं 2 to 3 टाइम्स, हमको कहेंगे कि आप ब्रीथ कंट्रोल करो। उसके बाद हम हर एक मसल्स के बारे में बताते हैं कि यू हैव अ बाइसेप्स, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करो स्लोली स्लोली, आप उस कॉन्ट्रैक्शन को 5 सेकेंड्स तक होल्ड करो, नाउ यू रिलैक्स दिस मसल। जब हम ये एक्टिविटी अपनी सारे मसल ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, द टाइम वी एंड विथ ईच एंड एवरी मसल, तो हमारी बॉडी इज रिलेटिवली फ्रेश, लाइक कि हम अभी ट्रेनिंग पे आए हैं। हमारे को इतना रिलैक्सेशन फील होता है जैसे हम अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करने के टाइम पे रिलैक्स फील करते हैं। हमने डीप ब्रीथिंग मेथड अभी डिस्कस किया था।
ये जितने भी मेथड्स हैं ये हमारी सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। जब भी हम किसी सिचुएशन में आते हैं तो वी हैव हर्ड कि देयर इज अ फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, कि या तो हमें फाइट करना है या तो हमें फ्लाइट करना है। अगर हम ये सारी मैनेजमेंट टेक्निक्स को अच्छे से यूज करते हैं तो हम हमेशा फाइट मेथड यूज करते हैं, जिसमें हमारे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जितनी भी बॉडी फंक्शंस है वो एकदम रेस करते हैं। जब मैं एकदम बोलूंगा कि आज आपकी बाउट है तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इतना एक्टिवेट कर देते हैं कि आपकी हार्ट रेट बढ़ा देगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, आपकी स्वेटनिंग बढ़ा देगा। बट मैं आपको बोलूं आपका कंपटीशन है, सो गो एंड टेक 5 डीप ब्रेथ्स, गो हैव अ मस्कुलर रिलैक्सेशन, गो हैव मेडिटेशन। तो ये सारी चीजें आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो बहुत कॉस्टली भी है एंड द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया शुड वर्क ऑन दिस, बायोफीडबैक मेथड। अभिनव बिंद्रा ने ये बायोफीडबैक मशीन अपने घर पे इंस्टॉल करी थी बिफोर 2008 ओलंपिक्स। बायोफीडबैक ट्रेनिंग्स हमारे को क्या करते हैं कि वी पुट सो मेनी इलेक्ट्रोड्स इन अवर बॉडी एंड हम परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी का लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, हमारी मसल अराउजल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस अराउजल को कंट्रोल करने के लिए बायोफीडबैक यूज करते हैं। लाइक कि मैं इलेक्ट्रोड्स लगा के कोई टेक्निक परफॉर्म करता हूं तो मेरी मसल्स की जो फ्लक्चुएशन है बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, जो कि वो अगर वो हाई फ्लक्चुएशन है तो मैं उस टेक्निक को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। बायो फीडबैक ट्रेनिंग हमको हेल्प करता है कि मैं वो फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर सकूं। मैं हर बार वो इलेक्ट्रोड लगा के वो टेक्निक को परफॉर्म करूंगा, मैं तब तक वो परफॉर्म करूंगा जब तक मेरी मस्कुलर फ्लक्चुएशन नॉर्मल रेंज में ना आए। बायोफीडबैक मेथड बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेथड है जो हाई एलीट क्लास एथलीट्स यूज करते हैं एंड आई विल सजेस्ट कि हमारी फेडरेशंस को और हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस ट्रेनिंग की तरफ मूव करना चाहिए। एंड एट द एंड मैं आपके साथ बहुत सारे जो मेथड्स हैं वो डिस्कस किए हैं। यू कैन सर्च, यू कैन स्टडी, यू कैन गो चेक यूट्यूब कि उनके अंदर और ज्यादा आप उनको अच्छे से कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज आई हैड वेरी लिमिटेड टाइम तो मैं सुपरफिशियली सारे टॉपिक्स को कवर कर सकता था। सुपरफिशियली मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करी है, सारे मेथड्स कवर करने की कोशिश करी है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं फॉर अवर रिलैक्स कंट्रोल, हम अपना स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। आई होप कि मैंने जो ये मेथड्स बताए हैं वो आप लोगों को प्रॉपरली समझ आए होंगे, उनकी इंपॉर्टेंस समझ आई होगी एंड समवट की वो आपको कैसे अप्लाई करने हैं। मैक्सिमम कोचेस अप्लाई भी करते होंगे बट और अच्छे से उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ये समझ आया होगा। आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू लिसन टू दीज वर्ड्स and I would like to thank the Sports Authority of India as well for giving me a platform to share my study, my work on this. Over to you, sir. Thank you so much, sir, for a nice session. Thank you. Thank you from our team that you are here and you have presented a wonderful lecture on stress management techniques in taekwondo. Thank you so much, sir. Welcome. Okay, now it's a quiz time. So everybody get ready for the quiz. Quiz time. Yesterday's question was wait for a second. नहीं सर ये पॉज हो जाता है।
Quiz time, and yesterday's question was what are the objectives in establishing the prohibited acts and penalties for taekwondo competition? And the answer is all of the above. All the three options in the front were the right, and the winners are Rubab Sharma, Abhay Chaurasia, Rohit Reddy, Yashvi, Avinash. I congratulate all the winners and we'll go forward to today's question. Identify this taekwondo athlete. You can see a picture on your screen. You have to identify her, and the options are Bianca Ogden, Kim Soo V, Jay Jones, Panipak W. So your chat box is open. Be fast with your fingers. Five, four, three, two, one. Stop. So that was an elite athlete for today's question. The answer will be announced tomorrow evening. So everybody stay home, stay safe, keep training. We'll meet tomorrow evening at the same time. Shreya, Hegde.